میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ ہنا روتے ہوئے چیخی تو آریان خانزادہ گہرا مسکرا دیا۔ کل ہنا کی بارات تھی اور آج آریان نے اسے زبردستی نکاح کیا تھا۔ تم سب کو بتا دو، میں مکر جاؤں گا۔ ویسے بھی جو حالات ہیں کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ نفرت سے کہتے آریان نے اسے دیوار سے لگایا۔ اپنے سے 12 سال چھوٹی ہنا کو کچھ وقت پہلے تک وہ بہن کہتا تھا اور بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، پر ہنا کی ایک غلطی اس کا ناقابل تلافی نقصان کر چکی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے میری جان، اصل مزہ تو کل۔ نہیں رمشا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میری بات کا یقین کرو۔ تم فہیم کے ساتھ منگنی نہیں کر سکتی، مجھ سے محبت کرتی تھی نا، پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ فواد اس وقت رمشا کو دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑ کر اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ تصویریں، یہ سب جھوٹ ہے۔ رمشا نے وہ تصویریں سامنے رکھ دی جن میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ فواد کسی لڑکی کے ساتھ نزدیک تھا۔ ہاں میں مان رہا ہوں کہ یہ تصویریں جھوٹی نہیں ہیں، لیکن تم ان تصویروں کو غلط رخ سے دیکھ رہی ہو۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بس بہت ہو گیا فواد، بہت اچھا ہوا کہ اس نے مجھے ساری زندگی کے عذاب سے بچا لیا، ورنہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اگر تم سے شادی کر لیتی تو پھر ساری زندگی تمہارے ساتھ کیسے رہتی۔ پر اب بہت ہو گیا، اب خبردار جو تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش بھی کی۔ فواد، میری فہیم سے منگنی ہو گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ رمشا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے نظریں چراتے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ حوریہ، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پر سوچو اگر رمشا کی اس سے شادی ہو جاتی تو اس کا کیا بنتا؟ ہنا اپنی بہن کے پاس بیٹھی تھی جبکہ حوریہ چپس کھانے میں مصروف ساتھ ساتھ ہنا کی بات سن رہی تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا آپی، حوریہ نے کہا، پر مجھے لگ نہیں رہا کہ فواد بھائی ایسے انسان تھے۔ مطلب اماں کی دوست کے بیٹے ہیں تو بھلا وہ اس طرح کی حرکت کیوں کر سکتے تھے؟ حوریہ، تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ میں نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہے؟ اس لیے تو میں نے تصویریں بنا لی تھی تاکہ ثبوت ہو میرے پاس۔ جو دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کردار کے بھی اچھے ہوں۔ ہنا نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے آپ ہی، مان لیتی ہوں آپ کی بات، حوریہ نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں اور خبردار جو اماں ابا کو یہ بات پتہ چلی۔ حوریہ اور ہنا 2 بہنیں تھیں۔ رحمان چودھری کی دونوں بیٹیاں ان کے گھر کا سکون اور رونق تھیں، جبکہ فضیلہ اور ہاجرہ بیگم کی آپس میں کافی دوستی تھی۔ وہ دونوں رشتے سے تو ایک دوسرے کی بہنیں نہیں لگتی تھیں، لیکن بچپن سے ایک ساتھ تھیں، تبھی تو حوریہ اور ہنا ہاجرہ بیگم کو خالہ ہی مانتی تھی۔ ان کے 2 بچے رمشا اور آریان تھے۔ کچھ بزنس کی وجہ سے رحمان چودھری اور ہاجرہ بیگم کے شوہر یعنی کہ گلفام کی آپس میں چپکلش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے رحمان صاحب اپنی بیگم کو بھی یہی کہتے تھے کہ اب ہاجرہ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں فضیلہ بیگم نے بھی اپنی منہ بولی بہن سے ملنا ملانا کم کر دیا تھا، پر وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے سمجھاتی؟ ہنا کی تو رمشا میں جان بستی تھی، اور یوں ایک روز وہ اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ تبھی رمشا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور پھر اسی طرح ہنا کو پتا چلا تھا کہ رمشا کی منگنی اور کسی سے نہیں بلکہ فواد سے ہوئی ہے، جو کہ اس کے ابا یعنی کہ رحمان چودھری کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ ارے واہ رمشا، اس بات پر ٹریٹ تو بنتی ہے، اس نے رمشا کو خوشی سے کہا تھا۔ ہنا کو بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ رمشا کی خوشیوں کو نظر لگ جائے گی۔ جب اس نے ہنا سے فواد کا پوچھا تو ہنا نے فوراً سے کہا تھا، فواد بھائی بہت اچھے ہیں، میں جب بھی ابا کے ساتھ ان کی بزنس میٹنگ پر جاتی ہوں تو
फवाद भाई बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को हैंडल करते हैं। हिना की तारीफ पर रिमशा के दिल को सुकून मिल गया था। लेकिन फिर एक रोज जैसे ही हिना अपने अब्बा के साथ अपने दोस्त की कंपनी में गई और वहां उसने फवाद और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को इतने करीब देखा, तो मौका देखते ही उसने वो तस्वीरें बना ली थी, जिसकी वजह से रिमशा का दिल टूट चुका था। वो रोते रोते घर आई थी। आर्यन ने अपनी बहन को ऐसे रोते हुए देखा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। रिमशा, बताओ तो सही, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? आज तो तुम्हें फवाद से मिलना था ना, फिर तुम रो क्यों रही हो? या तुम्हें फवाद ने कुछ कहा है? बताओ तो सही। आर्यन ने उसे झंझोड़ कर कहा, नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, बताओ मुझे। आर्यन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसकी इकलौती बहन रो रही थी और अगर वो ऐसे बैठा उसका मुंह देखता रहता तो फिर वो भाई का हक कैसे अदा करता। उसने काफी इसरार किया और यूं रिमशा ने वो तस्वीरें अपने भाई आर्यन को दिखा दी थी। ये तस्वीरें तुम्हें किसने दिखाई हैं? ये तस्वीरें कहीं से फेक तो नहीं लग रही? नहीं भाई, ये तस्वीरें असली ही तो लग रही हैं, पर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि फवाद ऐसी हरकत कर सकता है। रिमशा ने रोते हुए बोला, मुझे तो सच दाल में कुछ काला लग रहा है। आर्यन ने उन तस्वीरों को गौर से देखकर कहा, नहीं भाई, सब कुछ साफ है। इस तस्वीर में जो है वही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फवाद ऐसा निकलेगा, पर अभी भी देर नहीं हुई। मैं आज उससे जरूर मिलूंगी और उसे बता दूंगी कि मैं उससे ये रिश्ता नहीं रख सकती। आर्यन ने अपनी बहन को टूटा हुआ देखा तो उसे तसल्ली देने लगा। देखो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं फवाद से खुद बात कर लेता हूँ, क्या पता कोई और बात हो। रिमशा ने दो टोक कहा, नहीं भाई, हिना मेरी बहनों की तरह है। उसने मुझसे पहले फवाद की कितनी तारीफें की थी। अब वही अगर मुझे ऐसी तस्वीर दिखा रही है तो इसका यही मतलब है कि जरूर उसने अपनी आंखों से देखा है। और क्या पता फवाद ऐसा ही हो। देखो तो सही कितना मुस्कुरा रहा है। रिमशा ने दोबारा उस तस्वीर पर नजर जमाई और फिर वो तस्वीर दूर फेंक दी थी। अच्छा, तो तुम इसी वजह से ये सब कर रही हो ना? मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि उससे मत मिला करो। कभी उसकी माँ हमारे घर आई है मिलने के लिए? देखो, ये फर्जी रिश्ते होते हैं, सच्चे रिश्ते ही अपने होते हैं। मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूँ, लेकिन तुम हो के फिर भी हिना का पीछा नहीं छोड़ती। और देखो आज उस लड़की ने क्या कर दिया। उसने तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया है। आर्यन ने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की थी। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। रिमशा ने अपनी बात कही, गोया अपने भाई की बात पर यकीन नहीं करने वाली थी। बस बहुत हो गया, कब तक यूं शोक मनाओगी? मैंने तुम्हें फवाद से मिलने के लिए भेजा था, क्या बना फिर? आर्यन खानजादा, जो कि रात को ही ऑफिस से वापस आया था, अपनी बहन को यूं गुमसुम सा देखकर उसके पास आकर बैठ गया। हाँ भाई, गई थी उससे मिलने, और जो आपने कहा था वही कहा है उसे। कुछ देर पहले ही आर्यन ने जबरदस्ती रिमशा को फवाद से मिलने के लिए भेजा था और ये भी कहलवाया था कि उसे जाकर कह दे कि मेरा भाई मेरी मंगनी अपने दोस्त के साथ करवा रहा है। जैसे ही रिमशा को याद आया, फौरन से बोली, भाई आपने वो सब क्यों कहा था? फहीम तो वैसे भी दुबई में होता है, क्या सच में मेरी मंगनी उसे करवाने जा रहे हैं? रिमशा ने नीम उदासी से पूछा। उसके बाद आर्यन मुस्कुरा दिया। अरे रिमशा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेगा। मॉम डैड से मैंने बात कर ली है, लेकिन खबरदार जो ये बात तुमने हिना से कही, तुम हिना को कुछ भी नहीं कहोगी, वरना वो इस बार भी तुम्हारी खुशियों को नजर लगा देगी। मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आर्यन ने अपनी बहन को समझाया था। आर्यन का बस नहीं चल रहा था कि वो हिना से गिन गिन कर अपनी बहन की खुशियां छीनने का बदला ले। रहमान साहब अपनी बेगम के साथ अपने ही कमरे में बैठे थे।
जबकि उनकी बेगम बहुत परेशान लग रही थी। अरे क्या हुआ, कोई परेशानी है? क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? 2 जवान बेटियां हमारे घर में बैठी हैं। एक की तो शादी की उम्र भी हो गई है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं आ रहा। रहमान साहब ने जैसे ही अपनी बेगम की बात सुनी तो फौरन बोले, याद है तुम्हें मेरे दोस्त का जो बेटा है फवाद, काफी अच्छा लड़का है, पूरी कंपनी संभाली हुई है। दिलावर साहब को तो दिल का दौरा पड़ा था, उसके बाद ही फवाद ने सारी कंपनी संभाल ली। इकलौता बेटा है और बहुत अच्छा है, अच्छी तरबियत हुई है, लेकिन बस एक बात है। ये कहकर वो रुक गई। क्या बात? उनकी फजीला बेगम ने उनसे पूछा। दरअसल बात यह है कि कुछ अर्सा पहले उसकी मंगनी टूट गई थी। पीछे की क्या बात है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिलावर साहब को इसी वजह से दिल का दौरा पड़ा था। रहमान साहब खामोश हो गए। पर ये आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? फजीला बेगम समझ ना सकी। हमारी बेटी हिना फवाद के साथ बहुत अच्छी जचेगी, दोनों बहुत खूबसूरत हैं और ज़हीन भी हैं। यूं रहमान साहब ने अपनी बेगम को अपने दिल की बात कह दी थी। वो दोनों गहरी सोच में पड़ गए थे। रिमशा, क्या हो गया? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें? क्या तुम मुझसे नाराज हो गई हो? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अगर मैं फवाद भाई का असली चेहरा तुम्हारे सामने ना लाती तो कल कला को अगर वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देता तो फिर मैं खुद को माफ कर सकती। अगर मैं छुपा लेती तो भी मुझे यही डर लगता कि मैंने गलती की है। मैंने जो देखा वही मैंने तुम्हें तस्वीर के जरिए बताया है। हिना माफी मांग रही थी, जबकि रिमशा बिल्कुल खामोश थी। रिमशा, मुझे जवाब तो दो, माफ नहीं करना तो कुछ तो बोलो, हिना ने दोबारा कहा। तब रिमशा बोली, हिना, मेरी मंगनी हो गई है। हिना ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसकी होश उड़ गई। उसने फौरन स्पीकर से फोन हटा लिया और कान के साथ मोबाइल लगाया। कैसी बातें कर रही हो? मंगनी? दोबारा से? किसके साथ? हिना तजस्सुस के मारे बोली। आर्यान भाई के दोस्त हैं, उनके साथ। आर्यान भाई ने फिक्स की है, लेकिन खबरदार जो तुम मेरे घर आई या मिठाई वगैरह लेकर आई या तुमने अपनी अम्मा को बताया। दरअसल भाई ने सख्ती से मना किया है कि मैं ये खबर तुम्हें ना बताऊं। पता है भाई का मिजाज बहुत सख्त है, लेकिन मैं तुमसे कैसे छुपाती? तुम्हें बताए बगैर मुझे सुकून ही नहीं मिलता, इसीलिए तुम्हें बता रही हूं। रिमशा ने अपनी दिल की बात कही। ये सुनकर हिना खुश हो गई थी। रिमशा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब से मैंने तुम्हें फवाद भाई की सच्चाई बताई है, तब से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। हिना ने अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर कहा था। जब रिमशा की आवाज गोया किसी खाई से आई थी। हिना, जो होना था वो हो गया, अब दुआ करो कि फहीम मेरे नसीब में हो। बेड पर उल्टा लेटे मैगजीन पढ़ रही थी जब उसे अपनी माँ की आवाज आई। हिना, कब से तुझे आवाजें लगा रही हूं, कभी सुन भी लिया करो। तुझसे अच्छी तो हो रिया है, कम से कम उसके कान तो अलर्ट होते हैं। अच्छा अम्मा, क्या बात है? हिना फौरन करवट लेकर अपनी माँ के पास आ गई। मैंने तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। कल का दिन बहुत खास है। हिना चौंक गई। क्यों, क्या हुआ? कोई मेहमान आ रहा है? और दादो तो नहीं आ रही ईरान से? हिना को अचानक याद आया था कि जुलाई के महीने में उसकी दादो ईरान से आती थी और उसके लिए काफी तोहफे लाती थी। उसकी अम्मा ने उसके सर पर चपत लगाई। कमबख्त लड़की, ऐसी कोई बात नहीं। कल का दिन तुम्हारे लिए अहम है, क्योंकि कल लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। ये सुनकर तो हिना की आंखें चमक गई। अच्छा अम्मा, वैसे मुझे बड़ा शौक था कि जल्दी से मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। पता है, ये कहते कहते वो रुक गई। उसे याद आ गया था कि रिमशा ने उसे सख्ती से मना किया था कि किसी को ना बताए कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। बोलो बोलो, बोलते रुक क्यों जाती हो?
फजीला बेगम ने तंग आकर कहा। हिना ने फौरन जवाब दिया, अम्मा मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मेरी सहेली है ना कॉलेज की, उसका भी रिश्ता पक्का हो गया है। फिर वो खामोश हो गई, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि उसका रिश्ता कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो बस ये चाहती थी कि रिमशा की मंगनी हो गई है तो उसकी भी मंगनी हो जाए। हाँ रिमशा, मैं सच कह रही हूँ। अब पता नहीं कौन है, ये तो कल पता चलेगा। कल मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। दुआ करना कि कोई हैंडसम लड़का हो, मेरे ख्वाबों का शहजादा हो। फजीला बेगम के फौरन जाते ही हिना ने रिमशा को कॉल मिला दी और उसे सारी बात बता दी। आज के दिन हिना को होरिया ने ही तैयार किया था। होरिया जो कि उससे छोटी थी लेकिन काफी अच्छा मेकअप कर लेती थी। हिना किचन में थी, चाय बनाकर बाहर जाने ही वाली थी कि पल भर के लिए उसकी नजर फवाद पर गई। ये फवाद यहाँ क्या कर रहा है? उसकी सांसें रुक गई। ये है हमारी बेटी हिना। हिना, ये फवाद के अम्मा अब्बा हैं और ये फवाद हैं। फजीला बेगम ने तारुफ करवाया, जबकि हिना फटी फटी नजरों से फवाद को घूर रही थी। आखिर हिम्मत करके उसने भरी महफिल में कहा, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकती हूँ? आखिर हमें सारी जिंदगी एक साथ गुजारनी है। हाँ क्यों नहीं, बिलावर साहब ने फौरन मुस्कुराकर जवाब दिया। यूं फवाद जो कि बहुत संजीदगी से बैठा था फौरन उठ गया। अब वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर रिश्ता लेकर आने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? हिना फट पड़ी। तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी सहेली के साथ जो कुछ किया उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लूंगी? फवाद ये सुनकर हैरान रह गया। कैसी बातें कर रही हो? कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मैं तुम्हें एक महज़िब खानदान का समझती थी, लेकिन तुम तो 2 नंबर इंसान निकले। तुम्हें पता है मैंने ही रिमशा की जिंदगी बचाई है। शुक्र है मैंने तुम्हें उस सेक्रेटरी के साथ देख लिया था। शुक्र है मेरी सहेली बर्बाद होने से बच गई। तो क्या अब मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगी? मुझे साफ पता है कि तुम्हारा उस सेक्रेटरी के साथ चक्कर था। हिना ने उंगली उठाकर कहा, देखो आराम से हमारे घर से चले जाओ और अपने माँ बाप को अपने अल्फाज में समझा दो। मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती। अब अंदर जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दो। ये सुनकर फवाद के तो होश उड़ गए थे। मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता। तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना। अगर हिम्मत है तो जाकर सबको ये सच्चाई बता दो। फवाद भी टस से मस ना हुआ। हिना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूं सबके सामने वो ये सच्चाई घर वालों को बता सकती। जब फिर से वो बोला, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत है। मैं उस लड़की को सबके सामने ले आऊंगा और वो सेक्रेटरी सबको बता देगी कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। और फिर तुम रिमशा के खानदान के साथ साथ मेरे खानदान में भी बदनाम हो जाओगी कि तुमने जान बूझकर रिमशा की मंगनी तोड़वाई है। ये सुनकर तो हिना बहुत ज्यादा घबरा गई थी और यूं वो दोनों वापस अंदर आ गए थे। फवाद की अम्मा ने खुशी खुशी अंगूठी हिना की उंगली में पहना दी, जबकि हिना तो हवास बाख्ता थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो बस शोक मना रही थी कि कहाँ रिमशा को इस लड़के से बचाया था और खुद उसके साथ ही मंगनी हो गई। पूरे 1 घंटे में रिमशा की तकरीबन 10 मिस कॉल आई थी। हिना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका सामना कर सके। अगले रोज वो कॉलेज चली गई, जब अचानक से रिमशा उसके सामने आ गई। हिना, ये क्या था? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। इतने अच्छे मौके पर भी तुमने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। रिमशा ने वो फूलों का गुलदस्ता हिना को थमाकर मुस्कुराकर कहा था, जबकि हिना बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। हिना भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसका वजूद घबरा रहा था कि कैसे बताए जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि फवाद है। बताओ ना, तुमने अभी तक बताया नहीं
तुम्हारा फियांसी कौन है? क्या नाम है? तस्वीर दिखा दो। रिमशा ने फिर से उसे याद करवाया जब हिना गुमसुम सी बैठी थी। रिमशा ने उसके बाजू को झंझोड़ कर कहा, बता दो कौन है वो रियासत का शहजादा? हिना के मुंह से निकला, फवाद। वो कोई और नहीं, फवाद दिलावर है। ये सुनकर तो रिमशा की आंखें फट गई थी। कैसी बातें कर रही हो हिना? होश में तो हो। फवाद के साथ तुम्हारी मंगनी कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हारी वजह से उससे मंगनी तोड़ी थी, तो क्या फिर तुमने उसके साथ मंगनी कर ली? रिमशा को यकीन नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो मेरे डैड के फ्रेंड के बेटे हैं। मुझे कहाँ पता था कि मेरे डैड उसकी बात कर रहे हैं। मैं जब उसके सामने गई तो उसे देखकर मैं भी परेशान हो गई थी। मैंने उससे कहा था कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, वरना तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी। लेकिन वो कहने लगा कि उसके पास उसकी बेकसूरी का सबूत है। वो ऐसा लड़का नहीं है। वो उस लड़की को सबके सामने ले आएगा और यूं सबके सामने ये साबित कर देगा कि मैं गलत हूं। वो सबको ये कहता कि मैं तुम्हारी उसके साथ मंगनी नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपने ही खानदान के सामने फंस जाती। अम्मा अब्बा को तो ये भी नहीं पता। अगर मैं उनसे कुछ कहती तो सब राज खुल जाते। रिमशा, बताओ मैं क्या करती? मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं। उसके साथ मेरी मंगनी हो गई और मैं देखती रह गई। ये कहते हुए हिना ने नम आंखों के साथ रिमशा को अपनी अंगूठी दिखाई, जबकि रिमशा अपना सर थाम कर रह गई। कैसी बातें कर रही हो हिना? माफी क्यों मांग रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। रिमशा ने फौरन उसके हाथ थाम कर प्यार से कहा और उसे अपने गले से लगा लिया। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। रिमशा, वो लड़की 2 नंबर की फ्रॉडर निकलेगी। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिल तो कर रहा है मैं उससे गिन गिन कर बदला लूं। असल बात यह है कि वो फवाद से मोहब्बत करती होगी, और जब उसे ये मालूम हुआ कि तुम्हारी मंगनी उसके साथ हो गई है तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ये चाल चली कि तुम्हारी मंगनी तोड़वा कर खुद उस लड़के से मंगनी रचा ली। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आर्या ने गुस्से से कहा था। नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रही हैं? वो खुद बहुत ज्यादा परेशान है। उसे तो समझ नहीं आ रही कि ये सब कैसे हो गया। फवाद ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने ऐसी कोई भी बात सबके सामने कही तो वो खुद को बेकसूर साबित कर देगा और ये जाहिर करेगा कि उस पर सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है। तो वो क्या करे? रिमशा ने हिना पर तरस खाकर अपने भाई से कहा, इतनी भोली हो तुम रिमशा, न जाने तुम्हारा क्या बनेगा। मुझे तो समझ नहीं आती। आर्या ने सर झटक कर अफसोस किया। रहमान चौधरी और फजीला बेगम दोनों ही चाय पीने में मसरूफ थे। तभी फजीला बेगम थोड़ी सी उदास हो गई। अरे क्या बात है बेगम, इस उदासी की क्या वजह है? एक ना एक दिन तो रुखसती होनी ही थी। अभी 1 महीना है। जितना अपनी बेटी के साथ रहना है, यादें बनानी है, बना लो। नहीं नहीं, मैं इस बात पर उदास नहीं हूं, बल्कि मुझे तो अपनी सहेली हाजरा की याद आ रही है। हमने कैसे एक पल में ही उनसे सारे नाते तोड़ दिए थे। उनके बच्चे भी तो हैं, रिमशा है, आर्यान है। अल्लाह उनके भी नसीब अच्छे करे। ऐसा लगता है जैसे हमें ही पहल करनी चाहिए। क्या हमें उनके घर जाना नहीं चाहिए? फजीला बेगम ने नम आंखों से रहमान साहब को कहा। वो दोनों गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि ये नाराजगी की दीवार मिटा देनी चाहिए। वो दोनों अपनी बेटियों के साथ हाजरा बेगम के घर गए थे, जबकि रिमशा उस वक्त फहीम से मिलने गई हुई थी। फहीम ने उसे बुलाया था। वो दुबई से वापस आया हुआ था। आर्यान की नजरें बार बार हिना पर जा रही थी। उसका तन बदन जल रहा था। यही सोच रहा था, इस लड़की ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर हिना बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन थोड़ी उदास भी कि उसकी मुलाकात रिमशा से ना हो सकी। वो इस बात से खुश थी कि अब वो आराम से रिमशा से मिल सकती है। यूं
वो सब मिलकर वापस चले गए। जैसे ही उनकी गाड़ी वापस गई वैसे ही ऑटो से रिमशा निकली। हिना ने जैसे ही रिमशा को देखा तो ठुठक गई। ये रिमशा को क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? रिमशा रोते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। आर्यान की नजर उस पर गई। रिमशा, रिमशा क्या हुआ? फहीम से मिलने गई थी ना? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें पिक कर लेता। उसने रिमशा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो चीख चीख कर अपने कमरे की हर चीज तहस नहस कर रही थी। आर्यान उसके पीछे भागा। रिमशा, रिमशा मेरी बात सुनो। वो दरवाजा बजाने लगा, लेकिन रिमशा ने दरवाजा नहीं खोला। रिमशा, तुम्हारा भाई हूं, कुछ भी हो जाए अपने भाई से तुम कुछ नहीं छुपाओगी। दरवाजा खोलो। रिमशा ने अपनी हालत दुरुस्त की और फिर फटाफट दरवाजा खोल दिया। आर्यान ने उसकी हालत देखी तो उसका दिल टूट गया। बताओ क्या हुआ? फहीम ने तुमसे क्या कहा? मेरा दोस्त है, वो जिगरी यार है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसके कान ना पकड़ लूं? उसने रिमशा को तसल्ली देते हुए कहा, और फिर अगले पल उसकी नजर रिमशा के बाएं हाथ की उंगली पर गई थी। रिमशा, ये क्या है? अंगूठी क्यों नहीं पहनी तुमने? फहीम से मिलने गई थी और अंगूठी नहीं पहनी? आर्यान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जब रिमशा ने अगले ही पल अपना हाथ छोड़ा लिया। कैसे पहनूं अंगूठी भाई? किस चीज की अंगूठी? उस मंगनी की। मंगनी ही टूट गई, फिर मैं उस अंगूठी का क्या करती? उसकी वो अंगूठी मैं उसके मुंह पर मार कर आई हूं। उसने मुझसे जब शादी करनी ही नहीं थी तो वो सब क्या था? उसने वो मंगनी क्यों की? मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है? मेरे नसीब में कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। रिमशा ने दो टोक अपने भाई से कहा था, जबकि आर्यान उसकी बात सुनकर टूट चुका था। वो सिगरेट के कश ले रहा था। उसका पूरा कमरा धुएं में डूबा हुआ था। बस उसे अपनी बहन की सिसकियां सुनाई दे रही थी। अगले ही पल किसी के कहकहों ने उसकी बहन की सिसकियों में इजाफा कर दिया। आर्यान शीशे की तरफ देख रहा था। वहां उसने किसी का वजूद देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही थी जो बार बार हंस रही थी। देखा, तुम्हारी बहन की जिंदगी पर कीचड़ उछाल कर रख दिया। तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करेगा, ना ही वो किसी से शादी करेगी। और हाँ, पता है, एक हफ्ते बाद मेरी शादी है। मैं इतना खुश हूं, इतना खुश कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। हिना की चीखने की आवाज आर्यान खानजादा के कानों में गूंज रही थी। अगले ही पल आर्यान ने एक गुलदान उठाकर एक जोरदार चीख के साथ शीशे पर मारा। पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। यू इडियट, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। देखना, तुम्हारी जिंदगी ऐसे बर्बाद करूंगा जैसे तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। ये कहते हुए आर्यान ने सिगरेट एश ट्रे में रख दिया। हिना अपनी तैयारियों में मगन थी। उस दिन उसने रिमशा को काफी कॉल्स की थी, लेकिन रिमशा उसकी कोई कॉल उठा ही नहीं रही थी। हिना को ये तसल्ली थी कि शायद रिमशा अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो। वो बाजार में थी और बार बार हुरिया को फोन कर रही थी। अरे, ये हुरिया की बच्ची कहाँ रह गई? न जाने किस शॉप पर गई है। कब से इसे ट्राई कर रही हूँ। हिना शॉपिंग के बैग देकर परेशान हो रही थी कि ये सब कैसे घर लेकर जाएगी। शायद वो घर चली गई हो। हिना एक ज्वेलरी शॉप पर अपनी पसंद की चीज देखने के लिए दाखिल हुई थी, जबकि हुरिया ने कह दिया था कि वो थक गई है और घर जा रही है। हिना सड़क के किनारे खड़ी थी जब अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। ये कौन है? हिना ने जैसे ही नजर उठाई उसे आर्यान की गाड़ी नजर आई। उसको देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे आर्यान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और रिमशा, रिमशा कहाँ है? हिना ने गाड़ी के अंदर झांका, लेकिन वो खाली थी। रिमशा को मैं एक शॉप पर छोड़कर आया हूँ। क्या तुम भी उसके साथ ज्वाइन करना चाहती हो? असल में वो अपनी शादी का लहंगा पसंद कर रही है। आर्या ने संजीदगी से कहा। हाँ, क्यों नहीं?
हिना ने शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा करते कहा, मुझे काफी फिक्र हो रही थी कि ये सब कैसे घर लेकर जाऊं। तो क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आर्यन ने बगैर किसी झिझक के उससे कहा। और फिर हिना उसकी इजाजत के साथ गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद उसका ध्यान सड़क पर गया था। आर्यन भाई, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या रिमशा इस बाजार में नहीं आई? वो मासूमियत से बोली। जब उसकी बात सुनकर आर्यन ने गाड़ी की स्पीड मजीद तेज कर दी। कुछ देर बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचे थे। ये मुझे अब कहाँ लेकर आ गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। वो गाड़ी से उतरा और फिर उसके फौरन बाद हिना भी गाड़ी से उतर आई। ये सब क्या है? मुझे बता क्यों नहीं रहे? हिना ने अभी इतना ही कहा था जब अगले ही पल आर्यन खानजादा ने उसे बाजू से पकड़कर एक दरख्त के साथ लगा दिया। उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच चुका था। पता है तुम्हें रिमशा कहाँ है? रिमशा पूरे 2 हफ्तों से अपने बेड पर पड़ी है। अपनी मंगनी टूटने का शोक मना रही है। वो बर्बाद हो चुकी है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझी? उसकी चीखें पूरे सुनसान इलाके में गूंज रही थी। हिना को ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं रही, हिना घबरा कर बोली। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा जब तुम्हारी जिंदगी भी इसी तरह बर्बाद होगी जैसे तुमने मेरी बहन की बर्बाद की है। मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा। ये कहते हुए आर्यन ने हिना को झंझोड़ कर दांत पीसे थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है ये सब किस्मत ने किया। छोड़े मुझे। हिना ने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने उसे जकड़ कर कहीं ले जाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो एक छोटे से फ्लैट में पहुंचे थे। दरवाजा बजाने के बाद एक छोटा सा लड़का सामने आया जिसने दरवाजा खोला। अली, तुम्हें मैंने सारा इंतजाम करने का कहा था, क्या तुमने इंतजाम कर लिया? जी जी कर लिया, अली ने जवाब दिया। हिना तो नढाल हो गई थी। कैसा इंतजाम? तुम मेरे साथ क्या करने जा रही हो? हिना गुस्से से बोली। तुम्हें कुछ देर बाद पता चल जाएगा, आर्यन ने ये कहा और उसे घसीटते हुए एक रूम में ले आया। फिर उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया। तुम क्या करने वाले हो आर्यन? मैंने तुम्हारी बहुत इज्जत की। मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, तुम्हें भाई कहकर पुकारती थी, रिमशा को अपनी बहन समझती हूँ। आज मुझसे इतनी नफरत क्यों कि तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? अगले ही पल आर्यन ने हिना को खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और हिना फर्श पर गिर गई। बहनें ऐसे करती हैं अपनी बहनों के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि जब कोई जिंदगी बर्बाद करता है तो फिर उसका क्या होता है। ये सुनकर हिना को ऐसे लगा जैसे उसकी हड्डियों में सनसनी दौड़ गई हो। देखो, तुम ये सब नहीं कर सकते। नहीं, हिना फर्श पर पीछे की तरफ रेंगने लगी थी। मैं क्या कर सकता हूँ आज तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है। जब आर्यन ने उसकी बात सुनी तो फौरन उसके पास घुटनों के बल बैठकर बोला, किसके साथ शादी है तुम्हारी? बताओ, किसके साथ? फवाद के साथ? कौन फवाद? जिसके साथ तुमने खुद अपनी ही सहेली की मंगनी तोड़वाई थी और अब खुद उसके साथ अय्याशी करोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब तुम्हें करने दूंगा? नो, नेवर। वो और भी करीब आ गया। अगले ही पल हिना दीवार के साथ लग गई थी। देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो, हिना थक कर बोली। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ये सब ना करूं? आर्यन ने सवाल किया था। जब हिना ने रोते हुए अपना सर हिलाया तो आर्यन ने कहा, ठीक है, फिर मेरी बात मान लो, आराम से मेरे साथ निकाह कर लो। कुछ देर बाद मौलवी आ जाएगा, हम दोनों का निकाह होगा। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुमने इनकार किया तो फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें तुम्हारे घर आराम से छोड़ूंगा। लेकिन पता है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हर कोई तुम पर शक करेगा
کہ ساری رات کہاں تھی، کیونکہ میں تمہیں اتنی جلدی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آریان نے نرم انداز میں اسے سمجھایا۔ ہینا کو ایسے لگا جیسے اس کا حلق خشک ہو گیا ہو۔ وہ فوراً ٹوٹے الفاظوں میں بولی، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنی عزت جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یوں کچھ ہی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، نکاح کر لیا نا آپ نے؟ ہینا اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ہینا؟ اب میری بیوی بن گئی ہو، نکاح بھی ہو گیا ہے، حق بھی رکھتا ہوں تم پر، پھر اتنی جلدی میں تمہیں کیسے تمہارے گھر چھوڑوں گا؟ ایسے تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر ہینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میرا نکاح ایک ہفتے بعد ہوگا، مجھے پلیز میرے گھر چھوڑ دیں۔ اس کی بات سن کر آریان نے اگلے ہی پل اسے اپنے قریب کیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے؟ تو کافی طریقے ہیں یقین دلانے کے، چاہو تو آزما لو، نہیں تو پھر ایک ہفتے بعد سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ نکاح پر نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ آریان نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر جواب دیا تھا۔ ہینا اسے الگ ہونے کی بہت کوشش کر رہی تھی، جب آریان سے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری زندگی تم نے برباد کر دی ہے، اپنی بہن کا بدلہ تو لے لیا ہے، اب مجھے خدا کے لیے میرے گھر چھوڑ دو۔ آریان کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ اسے گھر تو چھوڑ آیا تھا، لیکن بہت زیادہ خوش تھا۔ ارے رمشا، اب تمہیں یہ آنسو بہانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تمہاری زندگی جس نے برباد کی نا، اس کی زندگی بھی برباد کر کے آیا ہوں۔ ایسا بدلہ لیا ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے وہ فواد کے ساتھ نکاح کرتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ہوش میں تو ہیں؟ رمشا نے ناراض ہو کر اس سے کہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے فواد کے ساتھ شادی کرتی ہے۔ بھائی مجھے سچ بتائیں، کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ میرے سر کی قسم کھائیں، مجھے سچ سچ بتائیں۔ آریان رمشا کی حرکت دیکھ کر گھبرا گیا، جو اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بولی تھی۔ آریان بے چین ہو کر اپنا سر جھکا چکا تھا، گویا وہ اسے نظریں چرانے لگا تھا۔ بھلا وہ اپنی بہن کو کیسے بتاتا کہ اس نے کیسے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو رمشا؟ مجھے کام ہے، مجھے جانا ہے۔ نہیں، جاتے جاتے اس نے آریان کو روکا۔ بتائیے آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ رمشا چیخ کر بولی تھی۔ نکاح کر لیا ہے میں نے اس کے ساتھ، اب وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، اور وہ یوں میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ میں نے اس نکاح کو رجسٹر بھی کروا دیا ہے۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں ایک ہفتے بعد کیسے وہ سب کو یقین دلائے گی کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ یہ بات سنی تو رمشا ٹوٹ چکی تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر اس نے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بدلے کی آگ میں اس کے بھائی نے یہ قدم اٹھا لیا۔ ہینا، تم کہاں تھی؟ اتنی دیر کر دی؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، فضیلہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ماما، وہ مجھے رمشا مل گئی تھی بازار میں، وہ اپنا لہنگا خرید رہی تھی، میں بھی اس کے پاس چلی گئی تھی۔ ہینا نے آرام سے اپنی ماں کو تسلی دی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ آپی، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، آپ فواد بھائی کے ساتھ شادی کرنے پر کیسے راضی ہو گئی؟ جانتی تو ہیں فواد بھائی کیسے انسان ہیں، وہ بالکل اچھے انسان نہیں، تو پھر آپ نے گھر والوں کو ان کی سچائی کیوں نہیں بتائی؟ ہوریا، جو اس دن اسکول گئی ہوئی تھی، جیسے ہی واپس آئی تو اسے پتا چلا کہ اس کی بہن کی منگنی اور کسی سے نہیں بلکہ فواد سے ہوئی ہے۔ وہ تب سے ہینا کو سمجھانے لگی تھی، جبکہ ہینا اسے اور کیا بتاتی کہ فواد نے اسے کیا دھمکی دی تھی، اور پھر اس کے بعد آریان نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اسے یاد کرتے کرتے تو ہینا کی روح کانپ رہی تھی۔ ہوریا، تم چھوٹی ہو، تم نہیں سمجھو گی، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے،
समझो कि उसकी सजा मुझे मिल गई है। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी फवाद से नहीं बल्कि मेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा। कैसी बातें कर रही हो आपी, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो। उसने अपनी बहन को गले लगाकर प्यार से समझाया था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि हिना किस खतरे की बात कर रही है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, खतरे की ये घंटी और भी ज्यादा तेजी से बजने लगी थी। वो दुल्हन बनी बैठी थी। लाल रंग के लहंगे में उस पर काफी रूप चढ़ा था। वो जानती थी कि ना ही आर्यान आएगा और ना ही रिमशा आएगी, बल्कि उनके माँ बाप भी इस शादी में नहीं आएंगे। आर्यान इतना कमजर्फ नहीं है कि ये सब कुछ करने के बाद ये तमाशा देखने आए। वो इतना भी जान गई थी कि आर्यान ने निकाह रजिस्टर कर दिया होगा। उसका वजूद कपकपा रहा था। फजीला बेगम ने उसे तसल्ली दी। अरे बेटा, कहीं और नहीं जा रही, अपने ही घर में जा रही हो। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेगा। हिना सिसकियों के साथ रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई थी। नहीं माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। हाँ हाँ, कैसी बातें कर रही हो बच्चे, अब तो तुम ये भी नहीं कह सकती। बस निकाह में 1 घंटा बाकी है और यूं निकाह में उन दोनों को सामने बिठा दिया गया। हिना का वजूद थर थर कांप रहा था। जब रहमान साहब ने मौलवी साहब से कहा, अरे मौलवी साहब, क्यों नहीं निकाह पढ़वा रहे? जब वो परेशानी के तासुरात लेकर बोले, रहमान साहब, बात यह है कि आपकी बेटी के नाम से निकाह तो पहले ही रजिस्टर है। 1 हफ्ता पहले ही किसी ने रजिस्टर करवाया है। ये खबर सुनते ही पूरे शादी हॉल में सन्नाटा छा गया। वो मेहमान जो कि काफी खुशी खुशी आए थे, एक दूसरे के साथ चमगोइयां कर रहे थे। हिना का वजूद लट्ठे की मानंद सफेद पड़ चुका था। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज है मेरी बेटी का निकाह, तो फिर 1 हफ्ता पहले निकाह कैसे रजिस्टर हो सकता है? आप लोगों को गलत फहमी हुई है। नहीं रहमान साहब, कोई गलत फहमी नहीं हुई, आप खुद ही देख लें। मौलवी ने अपना मोबाइल निकालकर एक तस्वीर उन्हें दिखाई थी। तस्वीर में तो साफ जाहिर था कि हिना का निकाह आर्यान खानजादा से हुआ था। रहमान साहब ने ये तस्वीर देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। भाई, आपने अच्छा नहीं किया, वो तस्वीर भी आपने उन्हें भेज दी। न जाने हिना का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे वहां जाना ही होगा। रिमशा तैयार हुई थी। खबरदार, तुम वहां गई, एक तस्वीर ने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी ना, ठीक उसी तरह हिना की जिंदगी भी मैंने एक तस्वीर से ही बर्बाद की है। इसमें क्या बुराई है? अच्छा भाई, आप ऐसे नहीं मानेंगे। देखिए भाई, आप चाहते हैं ना कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद ना करूं। मेरी जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर मैं चाहूं तो अपनी जिंदगी खत्म भी कर सकती हूं। कैसी बातें कर रही हो रिमशा? उस लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी खत्म करोगी? हम सब का क्या होगा? मॉम डैड का क्या होगा? आई डोंट केयर भाई, पर आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर आप उसे अपनी बीवी का नाम देकर इस घर में नहीं लेकर आएंगे तो मैं खुद की जान ले लूंगी। रिमशा ने आंखें निकालकर अपने भाई को धमकी दी थी। पागल मत बनो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उस लड़की को मैं यहां नहीं ला सकता जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। ठीक है, फिर लगता है आपको मुझसे प्यार नहीं है, आपको बस अपनी जिद से प्यार है। अपनी जिद की खातिर आपने ये सब किया। ये कहते हुए रिमशा भागते हुए अपने कमरे में गई थी, जबकि आर्यान उसके पीछे भागा था। रिमशा इससे पहले कि कोई हरकत करती, आर्यान ने फौरन कहा, ठीक है, मैं उसे ले आता हूं। उसने गहरा सांस खारिज किया। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, रिमशा ने फौरन कहा, और यूं वो दोनों बहन भाई हिना के घर चले गए थे। रहमान साहब ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को खींचकर थप्पड़ मारा। उसका मुंह दूसरी तरफ लुढ़क गया था। अच्छा नहीं किया आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ। अगर उससे मोहब्बत करती थी तो हमें पहले बता देती। यूं सबके सामने हमारे बेटे को जलील करके रख दिया। ये अल्फाज दिलावर साहब के थे। वो लोग तो वापस चले गए थे, जबकि मेहमान भी वहां से चले गए थे।
बताओ किधर है वो, कहाँ छुप कर बैठा है, उसको कॉल करो। हम यहाँ हैं अंकल। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि रिमशा की थी। उन सब ने एकदम पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों बहन भाई वहीं पर मौजूद थे, जबकि आर्यन अभी भी सामने खड़ा लापरवाह सा लग रहा था। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मेरे भाई ने आपकी बेटी के साथ ये सब किया। इसके पीछे एक मकसद था, मेरे भाई को गलत फहमी हुई थी। ये कहते साथ ही रिमशा ने सारी दास्तान रहमान साहब के साथ साथ बाकी सबको भी सुना दी। रहमान साहब को तो यकीन नहीं आ रहा था, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं था। तुमने एक दफा नहीं सोचा कि तुम मुझसे ये बात करो कि फवाद पहले से ही रिमशा के साथ मंगनी कर चुका था। वो अपनी बेटी से मुखातिब हुए जो रोने में मसरूफ थी, जिस पर उसके बाप ने जिंदगी में पहली दफा हाथ उठाया था। अंकल, उसने ये बात आपसे इसलिए नहीं कही क्योंकि फवाद ने उसे धमकी दी थी कि वो खुद को सही साबित कर देगा और सबको ये बता देगा कि हिना ने जानबूझकर मेरी मंगनी तोड़वाई थी। पर मैं हिना पर यकीन रखती हूँ, मेरी बहन की तरह है वो, ऐसा नहीं कर सकती। मेरा भाई गुस्से का तेज है, मेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सका, क्योंकि दूसरी दफा भी मेरी जिससे मंगनी हुई थी उसने मुझसे मंगनी तोड़ दी। मेरे भाई ने बदला लेने के लिए हिना को धोखे के साथ ले जाकर इसे निकाह कर लिया। इसमें हिना की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं। रिमशा रोते हुए सबको हिना की बेकसूर होने का यकीन दिला रही थी कि हिना बेकसूर है। रहमान साहब का गुस्सा अब सिर्फ और सिर्फ आर्यन पर था। आगे बढ़कर उन्होंने आर्यन को 2 थप्पड़ मारे थे, जबकि फजीला बेगम तो और भी ज्यादा रो रही थी। हिना का बुरा हाल था। रिमशा ने हिना का हाथ थामा था और सबसे कहा था, अंकल मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। हिना की जगह जिस घर में है हिना उसी घर में जाएगी। मैं इसकी नंद नहीं बल्कि इसकी बहन होने के नाते इसे अपने घर लेकर जाऊंगी, क्योंकि अब से वही इसका घर है। मेरे भाई ने जो गलती की है उस गलती को मैं सुधारूंगी। इसे वो इज्जत और वो रुतबा मैं दूंगी। आप सबको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रहमान साहब और फजीला बेगम रिमशा की बात सुनकर खामोश हो गए थे। उन्होंने रिमशा को इजाजत दे दी थी। आर्यन तो थप्पड़ पड़ने पर फौरन वापस बाहर चला गया था। वो गाड़ी में इंतजार कर रहा था जब उसकी नजर अपनी बहन और हिना पर पड़ी, जो कि दुल्हन बनी हुई थी। रिमशा उसको लेकर आ रही थी। उसने फौरन ही अपना चेहरा मोड़ लिया। तुम मेरे घर आ तो गई हो, पर फिक्र मत करो, मेरे दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं बन सकती। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, हाँ तुम मेरी बीवी तो हो, लेकिन मेरी रूह तक कभी भी रिसाई नहीं कर सकती। ये वो बातें थी जो आर्यन से रोज सुनने को मिलती थी। आर्यन की वही रूटीन थी। रात को देर से वापस आता था ताकि हिना का चेहरा ना देखे, लेकिन रिमशा ने हिना को जो इज्जत दी थी, वो मकाम दिलवाया था, वो उसकी एहसानमंद थी। हाजरा बेगम ने भी अपने बेटे को खूब डांटा था। हिना को कभी यह एहसास नहीं दिलाया था कि वो इस घर की बहू है, बल्कि वो रिमशा और हिना दोनों को एक जैसा प्यार देती थी। भाई, आज आप लोगों के निकाह को 1 साल हो गया है। ये छोटा सा गिफ्ट मैं आप दोनों को देती हूँ। रिमशा ने वो टिकट अपने भाई को थमाई थी। ये क्या है रिमशा, ये किस चीज की टिकट्स हैं? देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। रिमशा ने जैसे ही कहा तो आर्यन ने वो लिफाफा खोला था। अरे ये क्या है रिमशा, तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, फजूल में क्यों टिकट्स बुक की? आर्यन तो फट पड़ा था क्योंकि वो टिकट्स मालदीव की थी। भाई बहुत हो गया, 1 हफ्ते बाद आप दोनों मालदीव जा रहे हैं। वहां जाकर आप दोनों खूब एंजॉय करना। हिना ने ये सुना तो वो अंदर ही अंदर खुश हो गई थी, लेकिन आर्यन रिमशा पर गुस्सा करने लगा था। लेकिन रिमशा की खातिर उसने ये फैसला कर लिया था। हिना को वो मालदीव लेकर गया। पहली दफा जिंदगी में उन्होंने एक साथ कोई सफर किया था। उन दोनों की जिंदगी में
رمشا کی وجہ سے کافی بہتری آ گئی تھی۔ رمشا کا آریان نے پھر سے اپنے ایک دوست کے ساتھ رشتہ پکا کر دیا، لیکن اس کا تو شادی سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ آریان اور ہینا نے اسے بہت سمجھایا تھا، اور یوں تھک ہار کر اس نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔